سب سے پہلی آیا اتری تھی جو تھی اقرا بسم ربک الذی، رائٹ، پڑھ. سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اٹھ اور انذار کر. انذار کا مطلب جو ہوتا ہے نا ڈرانے کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے بچے کو غصے سے ڈرا کے بتانا. جیسے ایک ماں بچے کو فار ایگزامپل وہ آگ کو ٹچ کر رہا ہے تو کیا کرے گی؟ بیٹا نہ کر، پھر اس کو پیچھے کھینچے گی، پھر وہ جائے گا، پھر اس کو ڈانٹے گی، پھر اس کو کہے گی نہ کر. اس کی بھلائی کے لیے اس کو ایسے ایک ڈانٹ وہ ہوتی ہے جس میں انسان ہیوملیٹ کرتا ہے، جس میں اس کی انسلٹ کر کے ڈانٹتا ہے. ایک ڈانٹ وہ ہوتی ہے جو محبت سے پیار سے بچوں کو کہتی ہے ماں کہ نہ کرو تمہیں نقصان ہوگا. یہ وہ انذار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو ڈراؤ مکہ والوں کو، اور ان کو یہ بتاؤ کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ اس سے، کیونکہ دو ہی تو چیزیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اگر ہم نے جنت میں نہیں، اللہ نہ کرے اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی بیچ کا راستہ تو پڑا نہیں ہے، رائٹ. اور شیطان نے ہمیں اتنا پاگل کر دیا نا کہ اللہ رحیم کریم ہے، تم کرتے جو بھی دنیا میں کر رہے ہو آخر میں تم نے جنت میں چلے جانا ہے. اور ہم نے اس کی بائی بھی کر لی ہے، سٹوری بڑی اچھی سے بائی کی ہوئی ہے کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم کریم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے نا، کنوینینٹلی نہیں اٹھتے ہیں کہ ابھی رات اتنی لیٹ سوئے تھے تو ہماری ٹانگیں نہیں توڑتا. ایسا نہیں ہوتا. ہم کب سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں، اور دیدہ دلیری سے کرتے ہیں. ہمیں کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ ہم نہیں اللہ کے احکامات نہیں مان رہے ہیں نا. تو نمبر 1 یہ کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہ اگر چلو گھر سے تربیت ہوئی تھی، ہمیں کچھ پتہ بھی لگتا ہے، تو ہم اگر نہیں کرتے نا تو 100 بہانے ہمارے اوپر ہوتے ہیں. دیٹ از دا ریزن، دیٹ از دا ریزن، دیٹ از دا ریزن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ماں پہ جو سب سے بڑی، دیکھیں جب شادی ہوتی ہے نا، عورت کو شادی سے پہلے اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کی تربیت کر سکتی ہے کہ نہیں. ہم شروع سے اگر دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، رائٹ. پہلی دفعہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا کہ امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہاڑوں پہ، آسمان، زمین پہ اور انسان پہ پیش کی اپنی امانت. فرشتوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین اور پہاڑ، انہوں نے انکار کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت آپ کی نہیں اٹھا سکتے ہیں. کیوں؟ کیا تھا؟ کیونکہ وہ ڈرتے تھے. وہ اتنا ڈرے، انہوں نے کہا کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے، اور انہوں نے انکار کر دیا. یہ ورڈ ہیں قرآن کے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان نے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت اٹھائی. اور اگلا ورڈ دیکھ کے تو اور بھی حیرت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان بڑا ہی جاہل تھا اور بڑا ہی ظالم تھا کہ اس نے یہ امانت اٹھا لی. And I was like کہ ایک تو امانت اٹھائی، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے. تو what is the meaning of that؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ جو امانت اٹھا رہا ہے یہ کتنی بڑی امانت ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اس نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ جب انسان نے یہ کہہ دیا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں سے اتنا بھر دیا کہ اب تمہیں یہ راستہ، کیونکہ جنت کا راستہ ہے آخر میں تو ہم نے ادھر جانا ہے، اس راستے پہ چلنے کا سارے طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے گا. تمہیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی، رسول اور یہ کتابیں تمہیں ملتی رہے گی، گائیڈنس تمہیں ملتی رہے گی. کوئی ایک زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کے پاس گائیڈنس نہ ہو. پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈنس کے لیے چھوڑ دی. ایک درخت کو بھی اگر دیکھتے ہو نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ ایک بیج جو اتنا سخت ہے، جس کی نہ شکل نہ اس کی خوشبو نہ کچھ، کس طرح سے زمین میں دفناؤ، انسان کو دفنا دو مر جائے گا، سانس رک جائے گا. وہ بیج کس طرح سے ایک چھوٹی سی کونپل اتنی باریک، اتنی کمزور، کس طرح سے زمین پھاڑ کے باہر آ جاتی ہے. اگر اس کونپل کا وہ جو بیج نکل رہا ہے، اگر اس لکڑی جو بنتا ہے، تنا بنتا ہے اور پھر شاخیں بنتی ہیں، پھل پھول لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اگر اس لکڑی کی اپنی خاصیت ہوتی کہ اس نے باہر نکلنا ہے، اس میں اس کی یہی کام ہوتا کہ اس نے باہر نکلنا ہے، تو پھر لکڑی اندر کیسے چلی جاتی ہے کہ وہ جڑیں بن جاتی ہیں. تو تمہیں اگر کوئی رسول نہ بھی آتا، اگر کوئی کتاب نہ بھی آتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اپنی آیات رکھی. آیات صرف قرآن کی ہی نہیں ہے نا، کائنات بھی ایک آیات ہے. تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کو دنیا میں بھیجا، وہ کیونکہ اس نے
अल्लाह ने अपनी मर्जी से नहीं भेजा। अक्सर लोगों के ज़हन में ये बात आती है, हमने थोड़ी कहा था, हमें तो याद भी नहीं कि वो वादा अलस्त कब हुआ था, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसने ये सोचा ही नहीं कि ये जो इमानत उठा रहा है ये कितनी बड़ी इमानत है, और बगैर सोचे समझे उसने कहा कि मैं उठाऊंगा। लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी और दुरूद शरीफ के बारे में। देखिए आज जुम्मा भी है ना, तो हम वैसे तो हर रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन ज़रा हमें थोड़ा सा और भी शौक होता है। तो उसके बारे में मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करूँगी कि अबू तलहा रदी अल्लाह अन कहते हैं, ये नसाई की हदीस है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी तशरीफ़ लाते हैं, तो उनका चेहरा जो है वो खिला हुआ होता है, जैसे बहुत खुश होते हैं। तो सहाबा उनको देख के कहते हैं कि या रसूलल्लाह आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, तो उन्होंने आज आके मुझे कहा और ये खुशखबरी दी कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जो भी हैं उनमें से जो भी उनके लिए एक मर्तबा भी दुरूद शरीफ पड़ेगा, जो एक मर्तबा उनके ऊपर दुरूद पड़ता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करते हैं। कौन करता है? अल्लाह सुब्हाना ताला। और जो एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजता है, अल्लाह सुब्हाना ताला 10 मर्तबा उस पर सलाम भेजते हैं। देखिए कहाँ हमारी औकात, हम हम पढ़े तो क्या पढ़े वाली बात है ना, कि हम तो इंसान क्या कर सकता है, और कहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला उसके जवाब में 10 मरतबा रहमतें और 10 मरतबा सलाम उस उम्मती पर भेजता है जो एक दफ़ा दरूद पढ़ता है। तो आज तो हमें फिर चुप ही नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इतना दरूद पढ़े कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें, बरकतें अल्लाह सुब्हानहू तआला बस कबूल कर ले जो कुछ भी हम करें। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट टाइम हमने वज़ू के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे तमाम सगीरा गुनाह जो हैं वो हमारे हाथ से, हमारी आंखों से, हमारे पाँव से, कि हम चल के अगर किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, हमारी ज़ुबान से जो हम करते हैं गुनाह, और जब हमारे कान सुनते हैं, वो सारे के सारे धुल जाते हैं जब हम वज़ू करते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वज़ू के बाद जो हम दुआएं करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या खुशखबरियाँ हैं कि क़यामत के दिन जो वज़ू के बाद जो दुआएं जो लास्ट टाइम हमने कही थी वो पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो जन्नत के 8 के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, और हर दरवाज़ा उसको पुकारेगा कि मेरी तरफ से अंदर, मेरी साइड से अंदर आ जाए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के इतने करम, देखें कि फिर आज की हदीस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब वज़ू के बारे में अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक कब्रिस्तान में दाखिल हुए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम दारा कौमिन मोमिनीन, और व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, कि इन घरों में रहने वाले मोमिनों तुम पर सलामती हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी यकीनन तुम्हारे पास पहुँचने वाले हैं। अब देखिए कि कब्रिस्तान जब हम जाते हैं तो सबसे पहले सलाम करना, सलाम किसको की जाती है? जो आगे से जवाब देता है। अब देखिए जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बाथरूम में होता है तो हम उसको सलाम नहीं कर सकते क्योंकि वो जवाब नहीं देता, या कोई खाना खा रहा है तो उस वक्त उसको सलाम नहीं करते ताकि उसको कहीं चोक नहीं हो जाए या इस तरह से, तो हम सलाम नहीं करते। सलाम किसको किया जाता है? जो जवाब देता है। और जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो हमारे जितने भी लव वंस हैं, तमाम मोमिन मुसलमान जो वहाँ पे हैं, वो सलाम का जवाब देते हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है ना। तो फिर देखिए कि उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाइयों को देखता। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह हम आपके भाई नहीं हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम तो मेरे साहब हो, मतलब मेरे साथी हो, और मेरे भाई वो हैं जो मेरे बाद आएंगे। मतलब कौन है? जैसे मैं और आप, और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी मोमिन मुसलमान आएंगे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, मतलब उनके भाई हैं। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह क़यामत के दिन आप उनको कैसे पहचानेंगे? आपने तो उनको नहीं देखा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि अगर एक अस्तबल है, घोड़े हैं उसके अंदर, सारे काले रंग के घोड़े, और उसके अंदर एक घोड़ा जो चमकता हुआ सफ़ेद, जिसका चेहरा, जिसके हाथ और जिसके पाँव चमक रहे होंगे, क्या तुम उसको पहचानोगे नहीं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, हम उसको ज़रूर पहचान लेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन मेरे उम्मती जो वज़ू करेंगे, जैसे उनका चेहरा, उनके हाथ और उनके पाँव जो वज़ू के आसार होंगे वो चमक रहे होंगे, सफ़ेद चमक रहे होंगे, और मैं उससे अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा।
اور میں उससे पहले हौज़ कौसर पे उनका इंतज़ार करूँगा। तो इसलिए मैं आपके साथ इसलिए ये शेयर करना चाह रही थी कि क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें यूजुअली सुस्ती होती है कि हाय वज़ू करना है, ठंड है, बिस्तर से निकल रहे हैं। अब हर एक के हालात तो एक जैसे नहीं होते। आप देखें कि हम में से इतने मुसलमान हैं जो झुग्गियों में भी रहते हैं, ऐसे भी हैं कि जो जिनके पास पानी इतनी ठंड होती है, बर्फ़ गिर रही होती है और वहाँ पे भी पानी का इंतज़ाम इस तरह से प्रॉपर नहीं होता। तो हर लेवल पे सोचिए और आप देखिए कि जो फिर वज़ू करेगा तो कितना सवाब उसको मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला बस हमें अमल करने वाला बना। अल्लाह सुब्हानहू ताला से जब हम दुआएं करते हैं कि हमारे लव वंस जो हैं, फॉर एग्जांपल हमारे दोस्त होते हैं, हमारे बहन भाइयों में से, हमारे हमसाए में से, तो हमें नहीं पता लगता ना कि किसी के दिल में क्या है। तो फिर रसूल अल्लाह ने इसीलिए इतनी प्यारी दुआ सिखाई हमें कि ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जारि सू, ए अल्लाह मैं आपकी पनाह में आती हूँ बुरे हमसाए से, व मिन ज़ौजिन तुशय्यिबनी क़ब्ल अल मशीब। देखिए, अगर खामंद ये दुआ पढ़ते हैं तो वो बीवी के लिए है, और अगर बीवी पढ़ती है तो वो खामंद के लिए है, क्योंकि ज़ौज का लफ्ज दोनों के लिए आता है कि ऐसे जीवन साथी से जो मुझे बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे, वमिन वालिदिन यकूनु अलैया रब्बा, और ऐसी औलाद से जो मेरे लिए वबाल बन जाए, वमिन मालिन यकूनु अलैया अज़ाबा, और ऐसे माल से जो मेरे लिए अजाब बन जाए, वमिन खलीलिम माकिरिन आइनुहु तरानी वकल्बुहु यरआनी, ऐसे दोस्त से जिसकी आंखें और दिल मेरी निगरानी करते रहें। किस बात से निगरानी करे? ए रॉ हसनतन दफनहा, अगर कोई मुझ में अच्छाई देखे तो उसे अपने पास रखे। ए रॉ सय्यतिन, और अगर मुझ में कोई बुराई देखे, अदाहा, तो उसका चर्चा कर दें। अल्लाह अकबर। इतनी प्यारी दुआ है कि आप इसका एक एक देखिए, हर रिश्ते को इसमें बयान किया कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हर रिश्ते के शर से महफूज रखे। इसको याद कर लें। अगर आपको अरबी में याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, आप इसको उर्दू में याद कर लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात इतने जामे कलमात हैं कि हम अपनी जुबान में अपनी अकल से अगर मांगने शुरू करेंगे तो हमारे पास इतनी लंबी स्टोरी बन जाती है। लेकिन आप देखिए कि इसमें कितनी खूबसूरती से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रिश्ते के बारे में कि उसके अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके फितने से हमें महफूज रखे। बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ये तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआएं मांगते रहें और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी दुआएं कबूल करते रहें। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब पे अपनी रहमतें नाजिल करे। सुबह शाम की दुआएं पढ़ के ज़रूर फूंक दिया करे, घर में भी, एवरीवेयर। अल्लाह सुब्हानहू ताला इंशाल्लाह सब जगह पे खैर और खैरियत रखेगा। आमीन सुम आमीन। कि अलम तारा, फिर वही खिताब है, देखिए कि क्या आपने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, ऊतू नसीबन, दिए गया एक हिस्सा, मिनल किताब, किताब में से। ये आयत हमने पहले ऐसी पढ़ी है ना पिछले आई थिंक प्रोग्राम में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यही बात कही थी और उसमें मैंने इसकी डिटेल भी आपको बताई थी कि एक हिस्सा किताब का दिया गया। युमिनूना, वो ईमान लाते हैं, बिल जिब्ती, जिब्त पर, जिब्त कहते हैं जादू पर, व तागूती, और वो शयातीन पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ पर किताब का क्यों अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिक्र किया? क्योंकि किताब जो है ये तो इल्म है ना हम लोगों के पास। जैसे अब कुरान हमारे पास है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की आयात जो हम पढ़ते हैं तो हमारे पास इल्म आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, नबी देखो कि इनके पास इल्म आ चुका है, इसके बावजूद भी ये किस पर ईमान लाते हैं? तागूत पर ईमान लाते हैं और जिब्त पर ईमान लाते हैं। जिब्त क्या है? आप देखिए कि जादू टोना करना। अगर जैसे परिंदों को उड़ा के कहते हैं कि अगर वो दाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा, अगर बाईं तरफ चला गया तो ये मकसद होगा। फाल निकालना, सितारों की चालों को देखना कि सितारों का क्या है। देखिए हमें कितना कॉमन होता था। मुझे याद है कि हम कॉलेज में, हमारी जिंदगी में ये इतनी बड़ी चीज होती थी कि सबसे पहले अखबार खोल के हम देखते थे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और हम फिर उसमें बिलीव भी करते थे। और फिर उसमें जो चीजें अच्छी लिखी होती थी वो तो ठीक है, जो ऐसी लिखी होती थी फिर सारा वक्त वहम में ही रहते थे कि कुछ हो के रहेगा क्योंकि मेरा स्टार ये है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे क्या कहते हैं, कितनी हैरत से कहते हैं, ए नबी, इनको तो किताब का हिस्सा दिया गया और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान है, फिर भी ये ईमान लाते हैं। ईमान हम किस पे लाते हैं ना? अल्लाह पे ईमान लाना है, इस कुरान पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं वो ईमान लाते हैं जिब्त पर। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे पाकिस्तान के अखबार खोल के देखिए, टीवी के एड्स देखिए,
कि जो जिस तरह से उसमें लिखा होता है कि महबूब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, अगर तुम मुझे कॉल करो, और कॉल करोगे तो फिर इस नंबर पे कॉल करोगे तो तुम्हारी जो मुश्किलें हैं उसका हल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और अभी कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर आपके किसी जानने वाले ने कॉल किया हो, आप उनसे पूछिएगा कि वो क्या कहते हैं कि पहले इतने पैसे आप हमें क्रेडिट कार्ड से भेज दें, उसके बाद हम आपको ये चीजें भेजेंगे, इसको आपने जलाना है, इसको आपने पढ़ना है, इसको आपने ये करना है, इसको घर के इर्द गिर्द आपने ये करना है। इंशाल्लाह वो जो भी आपके घर में, देखें अगर एक चीज अपने दिमाग में रखें, अगर कोई एक ऐसी बीमारी है ना, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे डेफिनेटली वो आपको मेडिकल का इलाज बताएगा। अगर आप किसी ऐसे के पास जाते हैं जो जिन्नात को काबू किए हुए, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि आप डॉक्टर के पास, वो कहेगा मेरे पास इसका पूरा इलाज है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या करना है क्या नहीं। आप जिस शख्स के पास जाओगे ना, वो अपने मुताबिक ही आपको इलाज बताएगा। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता देखते हैं। देखिए हर चीज का इलाज करने के लिए ना, या हर चीज के लिए अगर कभी परेशानी आ जाती है, अगर कोई इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, इट्स नॉट ओनली कि बीमारी है, किसी भी हालत में नजर लग गई, ये हो गया वो हो गया, जब आपको वीक होते हैं ना आप, तो उस वक्त आपको देखिए अक्सर ये आप देखें कि जैसे डॉक्टर ने इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि जी इसका इलाज अब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस वक्त क्या होता है, सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि हमारे लव वंस होते हैं ना, हमें कोई भी उम्मीद अगर दिला देता है ना कि ये उस बाबा जी के पास जाओ तो वो अगर ये करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तो लोगों का ईमान बिक जाते हैं उस वक्त। देखिए और फिर पता है तर्स यही आता है कि हर किसी को ये होता है कि शायद इससे ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ये नहीं कह रहे। अब दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असबाब के अंदर पैदा की है ना, सबब इस्तेमाल करने के लिए कहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक चीज को गौर से सुन के इसको अपने पल्ले बांध लेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए इंसान की जो कुव्वतें हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी इंसान में जो ताकत रखी है, फॉर एग्जाम्पल हम सुन सकते हैं तो हम एक सर्टन लेवल की आवाज सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं तो हमारे सामने जो भी कमरा है हम उसके लेवल तक देख सकते हैं, अच्छा हमें वहां तक नजर आता है। कमरे के बाहर क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं पता लग सकता। या हम चल सकते हैं तो हम कितना चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर चलेंगे भी तो हम पांव से एक फासला है ना वो उतना तय करेंगे, अगर गाड़ी में है तो हम उतना करेंगे। हर चीज के लिए असबाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हद दे दिया ना कि इन हदूद में रह के हम काम करते हैं। अगर हमने कोई इल्म है हमारे पास, जैसे हमने मेडिकल में हम पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स हैं, उसको जो भी वो अपनी तरह से इलाज करते हैं। जो चीज इंसान के बस में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इंसान के बस में चीजें की है ना, उनसे अगर आप मदद लेते हैं, आप ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए। लेकिन वो चीजें जो सिफात अल्लाह की हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे सकते हैं ना, जैसे अगर लोग क्या कहते हैं कि जी बच्चे नहीं पैदा हुए तो फला मजार पे चले जाओ, वो उस मजार पे तो वो जो जिंदा ही नहीं है उसके पास तो बिल्कुल ही कुफर हो जाता है कि वहां जाके आप ये मन्नतें मांगे कि वहां से हमको औलाद मिली। और कैसे कैसी चीजें होती हैं, ये जिब्त और तागूत में कैसे कैसी चीजें होती हैं, ये सब पाकिस्तान में और इर्द गिर्द आपको मिलेगा कि किस तरह से हम बिदात करते हैं, किस तरह से हम शिर्क करते हैं और हमें पता ही नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं वाली बात है। हर वो चीज जो इंसान के बस में नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को एक सर्टन लेवल तक ताकत दी है और एक सर्टन लेवल तक इल्म दिया है, या जो भी चीज है उसके बयान अगर आप कोई भी चीज मांगते हैं करते हैं ना किसी को, अब फॉर एग्जाम्पल कोई पाकिस्तान में है, अब वो कहते हैं जी हम वो बुजुर्ग हैं, वो रात को आए थे और आके उन्होंने मेरी ये बीमारी ठीक कर दी, उन्होंने वहां से फूंक मारी और यहाँ पे मैं ठीक हो गया। कैसे मुमकिन है, देखिए कैसे मुमकिन है। आप कई चीजें ऐसी होती है कि जब हम उन पर सोचते ही नहीं ना, क्योंकि उसने किसी ने कहा कि नहीं मैंने कराया था मैं ठीक होगी, तो अब उसने कहा तो उसने कहा, फिर हमें लगता है कि अच्छा ये कुछ ठीक ही होगा, वो तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग है, वो बड़े अल्लाह वाले, मतलब ऐसे हैं। अच्छा क्या वो उनका रहन सहन करने, नहीं वो यंग से हैं वैसे तो, लेकिन अल्लाह ने उनको कोई खास करम दिया हुआ है कि वो वहां से फूंक मारेंगे तो यहाँ से बंदा ठीक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया कीजिए। देखिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ऑनेस्टली मैं सिर्फ अवेयरनेस दे रही हूँ आपको इन बातों के बारे में जो हमारे इर्द गिर्द हैं। मैं भी अल्लाह से ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्जुकना इत्तिबा व अरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाब, कि या रब्बुल आलमीन मुझे हक दिखा दे, क्योंकि इतना फितना है, इतने फितने होते हैं कि कई दफा हमारा माइंड जो होता है ना वो होता है कि शायद ये ठीक है, अब फिर हम ऐसी चीज कर दें, अगर शिर्क हो गई तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकोगे, और हर हाल में क़यामत के दिन हर बंदा आखिर में सजा भुगत के निकल जाएगा, शिर्क वाला नहीं निकलेगा। तो किधर बचेंगे? ये तागूत और जिब्त के बारे में तो इतना सोच के कदम उठाना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहीं शिर्क तो नहीं हो रहा। हम उन पे ईमान अगर ले आएंगे, ईमान लाना क्या, हम मुंह से नहीं कहते कि नहीं नहीं हम तो उस पे ईमान नहीं ला रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्या बता रहे हैं
کہ ایمان یہی ہے نا کہ اگر اللہ وہ شفا دے سکتے ہیں تو وہ تم دوسروں کے پاس جا کے کہتے ہو کہ وہ ایسے کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش، جیسے ہم لفظ یوز کرتے ہیں. علی حجویری جو تھے وہ اتنے بڑے بزرگ تھے جس کی کھاتی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی محنتیں کی تھی، اور وہ بادشاہ اکبر کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بلکہ ان چیزوں کے خلاف جہاد کیا تھا. اور آج ہم لوگ کس طرح سے چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کو دیکھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ویسے بن سکے، ہم بھی اسلام کے لیے وہ محنتیں کر سکے، انسٹیڈ آف ہم بھی انہی راستوں میں نکل جاتے ہیں جو ہم ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے. اللہ ان کی قبروں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہم بھی ایسے کام کر سکے جو تجھے راضی کرنے والے ہو جائے، انسٹیڈ آف یہ کہ وہاں پہ جا کے یہ کریں کہ تو دینے والا ہے، تو اللہ سے دعا کر کے یا رب العالمین مجھے یہ عطا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. فس یستجیبوا لی ولیستجیبوا لی، بس اس کو بھی چاہیے کہ میری حکم مانے. اب دیکھیے قرآن میں جہاں جہاں دعا قبولیت کا بات ہوئی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہاں پہ یہ شرط بھی ہے ساتھ، فلیستجیبوا لی، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات مانے. ہم حکم مانتے نہیں ہیں، پھر ہمیں یہ لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار میں وہی بات کہتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لے، ہمیں وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے جس پہ چل کر ہم ان جبت اور طاغوت سے بچ سکے. کیونکہ شیطان نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا کہ مجھے مہلت دے قیامت تک، مجھے مہلت دے تو میں تیری یہ جو جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اپنے پاس سے نکالا تھا، میں ان کی نسلوں کی جڑیں تک کاٹ کے رکھ دوں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو جا، تو نے جو کرنا ہے، تو مردود ہے. مردود کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی نا. تو مردود ہے، تو جا، تو نے جو بھی کرنا ہے، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. الحمدللہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ اللہ کا غرور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی لیے تو ان کو اتنے بڑے بڑے ممبروں پہ بٹھائیں گے، ایسے تو نہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو رکھنا کہ یا رب العالمین آپ نے ہمارے بارے میں ایسے کہا تھا، ہم شیطان کو ہرائیں گے. ہم قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا نا ہمارے سامنے، اس پہ عمل کریں گے تو شیطان کدھر آئے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن میں ہی بتا دیا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان، تو میری پناہ میں آ جاؤ. اب کیا قرآن جب پڑھے ہیں تو ہم کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے کہ ہم کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان. ہمارے دماغ میں تو یہی ہوتی ہے نا بات کہ اعوذ باللہ تو ہم تب پڑھتے ہیں جب کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس وقت انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت شیطان سب سے زیادہ حملہ اس بندے پہ کرتا ہے کہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کو اگر سمجھ آ گئی تو پھر یہ عمل کرنے والا بن جائے گا. تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آئے، اسی لیے تو سارا وقت ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آنی، یہ بڑا مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آنی. ہماری اساتذہ جی کہا کرتی تھی کہ جب ہم قرآن ناصرہ پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم تو شروع کرتے ہیں الحمد سے پورا سپارہ کر کے پڑھ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. شیطان اس وقت دیکھیں، شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں. وہ ایک دیوار بنا دیتے ہیں شیطان کے درمیان میں اور انسان کے درمیان میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا کہ شیطان سے پناہ مانگو، تو ہماری اساتذہ جی کہتی تھی کہ جب انسان ایسی قرآن پڑھتا ہے نا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو نہ سمجھ آنی ہے بندے کو، نہ اس نے عمل کرنا ہے، چلو میں جا کے کہیں اور جا کے اپنا کام کروں، اس کو کرنے دو جو بھی یہ کر رہا ہے، یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے. شیطان کب آپ کو ورگلاتا ہے، شیطان کب آپ کو تنگ کرتا ہے؟ جب آپ سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. آج آپ ایک کلاس میں اپنا داخلہ لے لیں، آج قرآن کی کلاس سے جڑ جائے، آپ دیکھیے گا آپ کو 1000 کام ہوں گے کہ میں پتہ ہے آج تو میری میڈ نے آنا ہے، آج بچوں کا دن ہے، آج میرے بچے نے مجھے بلا لیا، اس نے کہا کہ میرے بچوں کو دیکھ لو، آج میرے بچوں کا یہ کام ہو گیا، آج تو دیکھنا صبح کے ٹائم تو میں ناشتہ دیتی ہوں ان کو، اس ٹائم میں تو میں اٹھ ہی نہیں سکتی ہوں. 1000 بہانے جن کا کوئی تک بھی نہیں ہوگی نا، وہ آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا شیطان لا کے. آپ کو کبھی سمجھنے کی توفیق جیسے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے نا، اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گا کہ کسی طرح سے اس کو سمجھ نہ آ جائے. اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین یہ تو ایک کتاب ہے، بس اس کو میں پڑھ کے ایسے سمجھوں کہ میرے زندگی میں یہ شامل ہو جائے.
आमीन सुमा आमीन। अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी आयत है, मैं फिर वही बात कहती हूँ कि इसकी डिटेल पढ़ते हुए इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी रेगुलर जिंदगी की कहानी, हमारे इर्द गिर्द लोगों की यही कहानी होती है। और वह यकूलूना, और वो ये कहते हैं, लिल्लज़ीना, उनके लिए जिन्होंने कफरू, कुफर किया, किनके बारे में, अहले मक्का के बारे में कहते हैं, हाँ उलाई, ये लोग अहदा, ज्यादा हदायत याफ्ता है, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से जो आमनू, ईमान लाए, सबीला, रास्ते के एतबार से। अब ये वाली जो आयत है ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब यहूद जो थे उनका जो सरदार था ना, उसका नाम था काब बिन अशरफ, और जो मक्का में का सरदार था वो अबू सुफियान होते थे। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि हम लोग बाहर से हमला करेंगे और तुम लोग, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, अब इस्लाम फैल रहा था और यहूदियों को ये लग रहा था कि अब तो ये इनका तो बोलबाला हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर ये कहा कि हम ये करते हैं कि तुम बाहर से हमला करोगे, हम अंदर से हमला करेंगे, तो इस तरह से हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे। तो उस वक्त अबू सुफियान, जिस वक्त वो ये कह रहे थे, तो अबू सुफियान ने ये कहा कि हम नहीं मानते, तुम्हारे तो बहुत से लोग हैं जो मुसलमान भी हो गए और वो अंदर से मुसलमानों के साथ मिले हैं, तुम काबा में जाके ये कसम खाओ कि वो ऐसा कर, मतलब तुम ऐसा ही हमारा साथ दोगे तो तब हमें यकीन आएगा। तो फिर दोनों ने मिलकर ये बात की कि ठीक है, हम काबा में जाके इस तरह से, हम इतने बंदे अपने लेके जाते हैं, तुम इतने लेके जाओ, तो हम अल्लाह के सामने ये कसम खाते। अब देखिए कहाँ कसम खा रहे हैं ये दोनों, काबा में कसम खा रहे हैं, क्योंकि मक्का के लोग हज और उम्रह किया करते थे, वो अल्लाह को मानते थे, वो अल्लाह की नहीं मानते थे। आज हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो आप लोगों ने नमाज इशराक और चाश्त के नवाफिल के वक्त के बारे में पूछा, तो सबसे पहले तो इशराक की बात करते हैं कि सुबह फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने के 10 या 15 मिनट के बाद नमाज इशराक का वक्त शुरू होता है। नमाज इशराक की फजीलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स अपने मसल्ले पर बैठा रहता है तब तक जब तक सूरज तुलू होता है और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात